YouTube channel RSP Coaching. Today we are going to discuss standard 10 subject science and our topic is Ohm's law. Ohm's law तो सबसे पहले हमें दिमाग में आता है कि Ohm's law है किस चीज़ पे, किस चीज़ के बारे में पढ़ना है. तो Ohm's law में हमें रिलेशनशिप देखनी है किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में. मतलब टुडे वी आर गोइंग टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन V एंड I. सो सबसे पहले हम थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं इसके बारे में. तो हिस्ट्री वाला पहला पॉइंट क्या है? In 1827, German scientist George Simon Ohms had given the law. Means this law was given by the scientist whose name is George Simon Ohms. Okay. And what does this law was? What was the statement of the law? We have to see in further. अब इस law में हमें दिया क्या गया आगे? Law का statement क्या था? जो हमारे बहुत ज़्यादा काम का है. वो हमें क्या relationship देता है? तो देखते हैं. तो statement कुछ इस तरह था. The potential difference V across the end of the given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it. Means शॉर्टकट में अगर हम देखने जाते हैं, ये इतना हमें बताना चाहता है कि सपोज हम ये वायर लेते हैं जिसमें से करंट I फ्लो हो रहा है, फिर उस करंट के हम दो एंड लेते हैं और इन दो एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें मिलता है V. तो अब इन दोनों के बीच में जो हमारा रिलेशनशिप आएगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मीन्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिलेशन हमें मिला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर ये चीज तो हमें इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है, ये चीज मैं इंग्लिश में बोलूँ तो वी हैव अ पीस ऑफ वायर इन विच द करंट I is flowing on that we have two ends. These are the two ends and the potential difference between these two ends is V. Now according to this statement we have the potential difference V across the end of the given wire of an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it. Means if you consider this as an electric wire, then one end this and one end this, these are two ends. Across these two ends the potential difference will be your V and the current flowing will be your I, and that will be considered in the directly proportional manner. So how we can represent it symbolically? If we have to derive the equation, we have to represent it symbolically. So let's see further about on symbolically. So symbolically represent means V, which we call our potential difference, is directly proportional. Which type of proportional we are using? Directly proportional to the distance I. Or we can say that if we have to remove this proportionality symbol, we have to put someone else. अगर मुझे यहाँ पे V जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है उसमें से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को मैं निकालूं तो मुझे उसकी जगह कुछ तो डालना पड़ेगा. जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर तीन जन है कहीं पे, तीनों का वेट सेम है, मुझे वो वेट सेम रखना है लेकिन किसी एक को काम है तो मुझे उसकी जगह कोई और चीज रखनी पड़ेगी वहां पे जो कि कांस्टेंट हो, उसका वेट चेंज नहीं होना चाहिए. वैसे हमने यहाँ पे क्या यूज किया, हमारा R. वैसे हम लोग ने क्या किया, V upon I is equal to constant and that constant term is our is R. हमें वो constant term क्या मिली, R. तो इसी से हमारा जो इक्वेशन है वो बना V is equal to IR. और इस इक्वेशन को आप शॉर्ट में बोल सकते हो V, VIR. So if we have to change this equation, we have to remove this proportionality symbol, we have to put the constant term and the constant term will be R. By putting this R, we have the value V is equal to IR. This V is equal to IR in which R is our resistance of the wire. What is R? R is the resistance of the wire, which we can call also the constant term. It will be our constant term. Stop at V is equal to IR. हमें लास्ट इक्वेशन मिली हमारे V is equal to IR, जिसमें हमारा R क्या था, रेजिस्टेंस. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या है? तो रेजिस्टेंस को समझने के लिए हमें न्यूटन्स का थर्ड लॉ देखना पड़ेगा. न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. वैसे ही इसमें भी वो थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा काफी इजीली का रेजिस्टेंस होता क्या है. रेजिस्टेंस में ज्यादा कुछ नहीं है. जैसे हमारे मेटल है, सपोज ये हमारा है वायर, वी हैव अ पीस ऑफ वायर, द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर. जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो एक साइड से दूसरी साइड फ्लो होंगे
करंट पास करने के लिए। अब उस मटेरियल वायर में कुछ ऐसा होता है जो उसको फ्लो होने से रोकता है, कुछ रेजिस्ट करता है। तो उस रेजिस्ट करने वाली जो प्रॉपर्टी है उसी चीज को हमें बोलना है रेजिस्टेंस। एज लाइक सी व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टेंस टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। क्या कर रहा है? जो फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, उसको रेजिस्ट कर रहा है। मतलब आ तू, मैं तुझे आगे जाने दूंगा ही नहीं। फिर जब फ्लो ज्यादा होता है तो मैं निकाल देता हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं ऐसा यूनिट की। ओम्स लॉ की ऐसा यूनिट होगी क्या? तो अगर हम वर्ड्स में लिखने जाए तो एज वी नो कि बड़े बड़े साइंटिस्ट अपने नाम के ऊपर ही सिंबल रखते थे, यहाँ पे भी वही है ओम। अगर इसको हमें सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है देन वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय ग्रीक सिंबल। एंड ग्रीक सिंबल अगर आपको ऐसे याद नहीं रहे तो इसका आप सिंपल कॉन्सेप्ट से याद रखोगे, चार्ली चैपलिन की उल्टी टोपी। क्या याद रखते हैं? ओम्स लॉ में सिंबल क्या आएगा? चार्ली चैपलिन की उल्टी टोपी। अब ओम्स लॉ तो हमें मिल गया, V इक्वल टू IR। ओम्स लॉ के ऊपर से हम क्या फाइंड करेंगे? रेजिस्टेंस। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट अवर रेजिस्टेंस। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equal to IR, so we have to find R. So we have taken out R at the back side and we have got V upon I. V upon I means R is directly proportional to potential difference and it is inversely proportional to our current. And if we are going to write it in symbolical or in SI unit, we will write it like 1 ohm is equal to 1 volt per ampere. So now we got I is equal to V upon R. So in this we can simply say that our current is direct inversely proportional to the resistance. Means अगर हमारा करंट बढ़ता है तो उसी के साथ हमारा रेजिस्टेंस कम होगा। If we increase our current by 2 times more, then our resistance will be half of its part. Okay, so we have talked about resistance. Now we will go how to manage this resistance. We have different types of circuit. In different types of circuit, we have to manage our resistance. How we have to put large resistance, how we have to decrease our resistance. The instrument in which we can do this is called rheostat. Like in a circuit, a device is used to change the resistance. Means क्या हो रहा है बच्चा? एक सर्किट है, उसके अंदर आपको रिजल्ट अलग अलग चाहिए, रिजल्ट में वेरिएशन चाहिए। अब रिजल्ट में वेरिएशन कैसे आएगा? आप करंट तो जितना प्रोवाइड कर रहे हो वही करना पड़ेगा आपको सिर्फ अपना रेजिस्टेंस चेंज करना है। और रेजिस्टेंस कैसे चेंज करोगे? विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। ये रियोस्टेट की मदद से आप अपना रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो। और ये एक डिवाइस है जिसको आप यूज करते हो अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में। अब रेजिस्टर को हम दूसरी भाषा में समझिए तो उसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर इज रिटार्डेड बाय इट। मीन्स आपके जो, जैसे मैंने समझाया कि ये आपका वायर का पीस है, इसमें से इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, उसको रिटार्ड कर रहा है, मतलब उसको कम कर रहा है, उसको कम करने का काम कर रहा है, इसलिए उसको हम लोग ने क्या बोला? रेजिस्टर। अब टाइप्स ऑफ रेजिस्टर देखते हैं। रेजिस्टर कितने टाइप्स के होते हैं? तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ रेजिस्टर। हाउ मेनी? 4। विच वन? गुड कंडक्टर, फर्स्ट, सेकेंड इज रेजिस्टर, third is bad conductor and fourth one is our insulator. We have put it in our frequency level, means good resistance. इसमें क्या होगा बच्चा पार्टी कि आप जो रेजिस्टेंस अप्लाई करते हो वो काफी लो अमाउंट में होगा, मतलब आपको कंडक्टिविटी ज्यादा मिलेगी। सो इसमें हम लोग लिख सकते हैं लो रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस कैसा होगा? इससे ज्यादा होगा बट बैड कंडक्टर से कम होगा। मींस इसमें हम लोग कर सकते हैं मॉडरेट रेजिस्टर। अब हम बैड कंडक्टर की बात करें तो इसमें क्या होगा बच्चा पार्टी? अगर आपका 50% कंडक्टर है, 50% रेजिस्टेंस है, तो वो आपका हो गया था रेजिस्टर। अब इसमें आपको रेजिस्टर की वैल्यू और थोड़ी ज्यादा मिलती है, मीन्स इट विल बी more than moderate and our insulator is full of resistance, means it is
हाई लेवल रेजिस्टर। तब बचा पार्टी, इसमें मैंने लो रेजिस्टेंस पास किया है, तो मुझे कंडक्टेंस कैसा मिलेगा? हाई, क्योंकि हमने देखा था आगे रूल के अकॉर्डिंग क्या था हमारा, V इज इक्वल टू आई अपॉन आर था, मीन्स हमारा V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लो, तो ये कैसा हो जाएगा? हाई कंडक्टेंस मॉडरेट है तो लेस देन गुड कंडक्टर। यही बात मैं बैड कंडक्टर के करूँ तो ये इन दोनों से कम होगा, मीन्स यहाँ पे कैसा होगा, और कंडक्टेंस वैल्यू विल बी लो, and here we will get no conductance, or our value will be near equals to 0, means here we will not get any kind of conductance, and here we will get some kind of conductance, very less amount. As we move further, we get some good conductor as compared to bad and insulator, and if you move to the good conductor, we get a good amount of electricity. So here comes up with our topic, but we have remaining last one subtopic type and very little. I will take very little time of you, that is graph, just this graph. Okay, so graph time. In graph time, we have the graph V versus I. I have plotted the graph V versus I. In this graph, as we had said, that is V is directly proportional to I. So as I increases, V also increases, because we know that V is directly proportional to I. So according to graph, just I have plotted on y-axis potential difference, and on x-axis it is I. So on V we can write it as potential difference on I current। बच्चा पटी, अब ज्यादा कुछ नहीं, हमने सिर्फ एक ग्राफ प्लॉट किया है। ग्राफ भी किसके बीच में? V और I के बीच में। V वर्सेस I का ग्राफ है, जो कि हमारा क्या V वर्सेस I कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब 0.5 में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 1 था, तो जैसे हमने इसको इंक्रीज किया, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही इंक्रीज हुआ जितना पहले था, उतना ही थर्ड टाइम। तो अगर इसके द्वारा हम अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं, इफ वी टेक अ ग्राफ, वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। हमें क्या मिलेगा ग्राफ में? एक स्ट्रेट लाइन, विच प्रूव्स अवर ओम्स लॉ ट्रू। ये क्या करती है? ये ग्राफ हमारा ओम्स लॉ को साबित करता है। So guys, thank you for watching my video. If you are interested, if you like the video, then just please hit the bell icon and subscribe my channel, and do like, share and subscribe. Thank you. Stay safe, stay home.